Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computing methods. Lecture 7, Eigenvalue and Eigenvector. Algebraic method. Professor Ghulam Sarwar. Now, eigenvalue and eigenvector. Someone called eigenvalue and eigenvector. Let A be a n into n matrix. A scalar lambda is called an eigenvalue of matrix A if there is a non-zero vector x such that x is equal to lambda x or a minus lambda I x is equal to 0, where such vector x is called an eigenvector of a of matrix A corresponding to lambda. Here a minus lambda I and x is equal to 0. We explain it. A is a given matrix, lambda is a constant, I is an identity matrix, x is an unknown matrix, and 0 equal to null matrix. Now to find eigenvalue and eigenvector, we illustrate an example. Let A is equal to 8 minus 2 4 minus 3 minus 2 3 minus 4 1, and we have relation A minus lambda I x is equal to 0 for to find the eigenvalue and eigenvector. So proceed it. Finding eigenvalues lambda I, because we have 3 by 3 matrix, it's mean we will find 3 eigenvalues. Lambda I means lambda 1, lambda 2, lambda 3, where lambda I are the roots of determinant A lambda I is equal to 0. It's mean we only use our relation A minus lambda I x is equal to 0. So we to find eigenvalue we only use determinants A lambda I is equal to 0. Now determine A lambda I. So we write it. This is our determinants, and A, this is our A matrix, minus lambda, this is our minus lambda, and I means identity matrix is equal to 0. Now 8 minus 2 4 minus 3 minus 2 3 minus 4 1 minus lambda 0 0 lambda 0 0 lambda. It's mean we have multiplied this lambda by 1 1 1 1. Then we have this type. Now 8 minus lambda minus 8 minus 0 minus 2 minus 0 4 minus 0 minus 3 minus lambda minus 2 minus 0 3 minus 1. When we solve it these two matrix, then we have lambda 8 minus lambda minus 8 minus 2 4 minus 3 minus lambda minus 2 3 minus 4 and 1 minus lambda, which is equal to 0. Now when we solve it, we can use ordinary method of solving determinants like as in 10 and फर्स्ट ईयर क्लासेस. इस डिटरमिनेंट को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम मैट्रिक में भी सीखा है और हमने फर्स्ट ईयर में डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी. देन वी सॉल्व इट. When we solve it this determinants, then we will get lambda cube minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to 0. Here we introduce a new method to solving determinants, this type, the new technique. What is the new technique? 8 minus lambda minus 8 minus 2 4 minus 3 minus lambda minus 2 3 minus 4 1 minus lambda is equal to 0. Here we use this. Here we use to solve this determinant by this formula. What is the formula here? Lambda cube minus trace A lambda square plus A11 A22 A33 lambda, where A11 A22 A33 are the minus of these determinants, minus determinant A is equal to 0. Now we have our this determinant when determinants A, we find trace determinant A 8 minus 2 4 minus 3 minus 2 3 minus, this is our given matrix, and when we find determinant of A, then we will get 6. Trace A, here this one after lambda cube minus trace A. Trace A means sum of diagonal elements. 8 minus 3 1, 8 minus 3 1 is equal to 6. And A11, what is the A11? This is the minor of our given matrix.
we will hide first column, first row. Then we have A11. So see that we hide first column and first row. Then we have minus 3, minus 2, minus 4, minus 1. See that minus 3, minus 2, minus 4, 1. And then we when we solve it, we will get minus 11. Similarly, A22, 8 minus 2, 3, 1 is equal to 14. Similarly, A33, 8 minus 8, 4 minus 3. Now we will put lambda cube minus at the place of trace A we have 6 lambda square plus A11 we have minus 11, A22 we have 14 and A33 we have 8. See in the right side, and determinant A is equal to 6. When we solve it, then we will get lambda cube minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to 0. This is our is equation of the determinant of this 8 minus lambda minus 8 minus 2 4 minus 3 minus lambda minus 2 3 minus 4 1 minus lambda means solution of this determinants lambda cube minus 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to 0. यानी इस डिटरमिनेंट को जब हमने सॉल्व किया तो एक नया मेथड सिखाया है. उस मेथड में क्या है कि ये जो फार्मूला है लेमडा क्यू माइनस ट्रेस है लेमडा स्क्वायर प्लस A11 A22 A33 लेमडा माइनस डिटरमिनेंट एज इक्वल टू 0. आप चाहते हैं जो ऑर्डिनरी मेथड है जो आप मैट्रिक में फर्स्ट में आप चाह रहे हैं वो वाला मेथड नहीं करूँ, मैं दूसरे तरीके से कर लूँ, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. जो आपका गिवन मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, उसके 3 माइनस निकालेंगे A11 A22 A33 और डिटरमिनेंट्स निकालेंगे. इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा या ये इक्वेशन आ जाएगी. अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन लेमडा क्यू माइनस 6 लेमडा प्लस 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 0. हेयर वी सपोज लेमडा इज इक्वल टू +1 आर -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन. यहाँ पर हम लेमडा की वैल्यू सपोज करते हैं कि +1 -1 और इसको हम ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें पुट करेंगे. हम इसमें पुट करते हैं, देखो 1 को तो 1 क्यूब -6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 -6, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाती है. ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी 0 के बराबर आ रहा है. तो हम देखेंगे तमाम वैल्यू जो है 0 के बराबर, इसका मकसद है 1, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हमारे पास लेमडा -1 इज इक्वल टू यानी लेमडा की एक वैल्यू 1 आ गई. अब हम क्या करेंगे, जो लेमडा क्यू माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन divide 1 this equation by lambda minus 1 which we will get from this technique. यानी हमने यहाँ पे लेमडा की मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट करके हमने इसका एक फैक्टर निकाले. अब जब हम इसको इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय लेमडा माइनस 1, देन वी हैव लेमडा माइनस 1 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 एज इक्वल टू 0. यहाँ पे हम देखते हैं लेमडा -1 एज इक्वल टू 0 एंड लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 एज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे, देन लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा को हम क्या करेंगे भाई, -5 लेमडा को हम यहाँ पर फैक्टर कर रहे हैं -2 लेमडा -3 लेमडा प्लस 6 एज इक्वल टू 0. इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देन वी हैव लेमडा इज इक्वल टू 2 लेमडा इज इक्वल टू 3 एंड लेमडा इज इक्वल टू 1. Therefore lambda 1 is equal to 1, lambda 2 is equal to 2 and lambda 3 is equal to 3. These are the eigen values of given matrix से. हमारे पास चूँकि 3/3 मैट्रिक्स की गिवन थी इसलिए हमने यहाँ पे वहाँ पे लेमडा आई सपोज किया था, तो लेमडा आई से मुराद है लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3. यहाँ पे हमारे पास 3/3 मैट्रिक्स के 3 आइगन वैल्यूज़ या आइगन वैल्यूज़ आ चुकी है. नाउ फॉर आइगन वेक्टर a माइनस लेमडा आई एज इक्वल टू 0 एज a माइनस लेमडा आई एक्स एज इक्वल टू 0, हम ये कंप्लीट रिलेशन यूज करेंगे फॉर टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स. सो फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 7 माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 4 0 x1 x2 x3, बिकॉज हेयर वी हैव a माइनस लेमडा आई दिस वन एंड x इज इक्वल टू x1 x2 x3 बिकॉज इज अवर वेक्टर एंड 0 मीन्स नल मैट्रिक्स 0 0. अब ये वैल्यूज़ कहाँ से आ गई, तो हमारे पास देखें ये हमारे पास रिलेशन है ये वाला a माइनस लेमडा आई हमने ये निकाला है. वी फाइंड a माइनस लेमडा लाइक दिस एंड एट द प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू x1 x2 x3 0 0. अब यहाँ पे हमने लेमडा की वैल्यू वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन क्रिएट करेंगे. तो हम देखेंगे हमें सिर्फ 2 इक्वेशन के वी हैव 2 equation to find the values of x1 x2 and x3. 7x1 minus x2 minus 2x3 is equal to 0. 4x1 minus 4x2 minus 2x3 is equal to 0.
ये बोथ इक्वेशन आर कमिंग फ्रॉम दिस, यानी दोनों मैट्रिक्स को हमने सोल्व किया है, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई किया, इक्वल इसकी किया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक इजी तरीका है जिसको हम कहते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर है हमारे पास x1, ठीक है, इसको हम हाइड करेंगे फर्स्ट कॉलम को, एंड यहाँ पर देखते हैं x1 लेंगे हम, और इसके नीचे देखें हमारे पास डिटरमिनेंट्स हम बनाएंगे, तो ये आएगा यहाँ पे -8, -2, -4 एंड -2। अगेन वी हाइड दिस कॉलम, कॉलम 2, जब कॉलम 2 को हाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास 7 4 -2 -2 -2, ठीक है। और x3 के लिए हम क्या करेंगे, वी विल हाइड कॉलम 3, देन वी विल गेट 7 -8 4 -4, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इस 2x2 मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट x1 is equal to 8, x2 is equal to 6 and x3 is equal to 4. Now x is equal to x1, x2, x3, this one x1, x3, then our values x1 is equal to 8, 6 and 4, and we are watching that by dividing 2 8 we will get 4 3 4, क्योंकि ये 8 6 4 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो हम डिवाइड कर देंगे। तो here we have the values 4 3 2, this is given आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू आई है, यानी आइगन वैल्यू जो आया कॉरस्पॉन्डिंग उस आइगन वैल्यू पे उसका आइगन वेक्टर जो हमारे पास ये है, वो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रिलेशन है, हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है ये वाली, इसमें हम लेमडा की वैल्यूज पुट करते हैं। सिमिलरली फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2 वी विल गेट लाइक दिस, इन दिस इक्वेशन 8 माइनस लेमडा -8 -2 4 -3, इसके अंदर जो है इन दिस रिलेशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 2, देन वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आ जाएगी तो लाजमी पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएंगी, 6x1 -8x2 -2x3 एज इक्वल टू 0, 4x1 -5x2 -2x3 एज इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन आ गया, इसको भी हम वही क्रेमर्स रूल के जरिए सोल्व करेंगे। वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 x3 इजीली बाय क्रेमर्स रूल। So watch this, x1 we hide the value first column, then we will get -8 -2 -5 -2, and in this one we hide the column 2, column 2 का करेंगे 6 4 -2 -2, and we will hide column 3, then we have 6 -8 4 -2. Here we have to note a point, the first value will be positive, second negative, third positive, fourth negative positive. It's mean alternate signs. It's mean in previous this like this Cramer's rule x1 minus x2. दिस इज अ कंपल्सरी, यहाँ पे फर्स्ट x1 जो है पॉजिटिव रखते हैं, सेकंड को नेगेटिव रखते हैं, थर्ड को हम पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो रह गया था, मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब क्रेमर्स रूल के जरिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देन वी विल हैव x1 एज इक्वल टू 6, when we'll solve this determinant we will get 6, by this determinant we will get 4, by this determinant we will get 2. It's mean we have x is equal to x1 x2 x3, x1 is equal to 6, x2 is equal to 4 and x2 is equal to 2, and we see that we can divide it these values, so we divided by 2, then we have 3 2 1, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 6 4 2 डिवाइड हो सकते हैं 2 से, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। This is eigenvector corresponding to lambda is equal to 2. Now for lambda is equal to 2 we already find, अच्छा here यहाँ हमने lambda is equal to 2 लिखा है, यहाँ पे lambda is equal to 2 नहीं है बल्कि हम यहाँ पे 3 फुट कर देंगे, बिकॉज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे लेमडा की जो वैल्यू है, यहाँ हमने ये 2 लिख दी, ये 2 नहीं आएगी बल्कि यहाँ पे ये वैल्यू 3 आनी, क्योंकि 2 ऑलरेडी पुट कर चुके, वी हैव ऑलरेडी पुट 2, बट हेयर वी विल पुट 3, so write at the place of 2 3, then we will when we put lambda is equal to 3 in this relation, then we will have this type relation. अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5x1 minus x2 minus 2x3 is equal to 0, दोनों इक्वेशन बनाते हैं। अगेन अनदर इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन बनाई, यहाँ पे we use x1 minus x2 x3, यहाँ पे we will hide first column, then we have -8 -2 -6 -2, -8 -2 -6 2. Similarly we will hide, then we will get this one. Similarly we will hide column 3, then we will get 5 -8 4 -6.
अगेन वी सोल्व. अब इसको मजीद हम सॉल्व करते हैं. देन वी विल सोल्व दिस 2/2 डिटरमिनेंट. देन वी विल गेट x1 is equal to 4, x2 is equal to 2, x equal to 3. These are the solution of x1, x2, x3. So x is equal to x1, x2, x3, which equal to 4, 2, 2, as equal to 2, 1, 1. This is आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 3. यहाँ पे हमने देखा कि लेमडा की हमारे पास 3 वैल्यूज आई है बिकॉज वी हैव 3/3 मैट्रिक्स. इफ वी हैव गिवन 2/2 मैट्रिक्स वी विल गेट 2 कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स एंड आइगन वेक्टर. यानी 2 अगर वेक्टर आपके पास आइगन वेक्टर आएंगे तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग 2 ही आइगन वैल्यूज ही आएंगी. ठीक है. अब यहाँ पर बहुत ही इजी मेथड पे इसको करके सिखाया गया है. आप चाहें तो ये 2 इक्वेशन को आप 3 इक्वेशन बना के साइमल्टेनियस जैसे सॉल्व करना चाहें क्रेमर रूल से, जिस भी रूल से, ये वेरी इजी मेथड है जो आसानी से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. अगर प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं. नाउ वेलकम टू मैथ्स खाना. गुड लक. फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप. ऑल स्टूडेंट मस्ट सब्सक्राइब फॉर योर अटेंडेंस. प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट लेक्चर 8. थैंक यू. अल्लाह.